Good evening, students. Yeah, good evening, all of you all. Good evening. Very good evening. Okay. Now, students, you might be aware, many students must be aware that I have already uploaded lecture 2 of Circle on our channel, Mathamaze. Okay. The reason I'm uploading all the lectures before I teach is few students are having it for the exam, so they have requested for me, and it would be better because always I have been thinking that if you watch the videos, if you watch the lectures first and then attend the live lectures, it would be a different story altogether. Many things you already be knowing it. Okay, so understanding becomes much easier. If you have any doubts at that particular time also, you can ask a doubt, right? So students, let us start with our lecture, right? In our lecture 1, in our videos, already what we have done, all the homework sums also I have recorded, okay? So normally in classwork, which we don't do, all the sums including classwork, homework, all the sums I have recorded and given it to you all. Of course, I have recorded lecture 3, lecture 4 and lecture 5, but it will be uploaded soon. Within tonight or tomorrow it will be uploaded, right? Let us start with problem set 3, sum number 3. A very simple sum. Now in this sum, what is the given information? M is the center of the circle. So this is a circle with center M. KL is a tangent segment. So KL is a tangent segment. Now remember this very well. Tangent segment. I have told it to you in the lecture 1 as well. Tangent segment मतलब एक ऐसा segment जिसका एक end point of contact हो. Tangent segment मतलब एक ऐसा segment जिसका एक end point of contact हो. So here we can clearly see L is the point of contact, right? Now point of contact से radius देखो ML दिख रहा है. So ML is the radius, KL is the tangent, right? So याद रखना कौन सा theorem use होने वाला है. Moreover, MK is given 12, KL is given 6√3, and we have to find the radius of the circle. Now students, tell me in this figure which segment is representing radius. Yes, we all know radius is segment ML. अगर हमको radius ML find करना है तो फिगर देखो पहले. MK का वैल्यू दिया है 12, KL का वैल्यू पता है 6√3. So ML find करना है. ML belongs to triangle MLK. So we have taken triangle MLK. Now इस triangle MLK में angle L would be 90 degree. हमें पता है ML is the radius, KL is the tangent. So angle L कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा. Reason would be yes, tangent theorem, right? So here we have to say angle MLK 90 degree. Because हमें पता है, we know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. मतलब ये entire theorem जिसका बात कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं बल्कि tangent theorem है. So ML के 90 डिग्री होने का reason would be tangent theorem. So we'll mark this as equation number 1. बराबर? Now since it's a right angle triangle, definitely we'll be using which theorem? Yes, we'll be using Pythagoras theorem. So let us start with Pythagoras theorem. Now 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला साइड is MK. So Pythagoras theorem use करेंगे तो MK square अकेला होगा. So MK square is equal to ML square plus KL square. The reason would be by Pythagoras theorem. Now let us substitute the values of known sides. MK का वैल्यू 12 पता है, so 12 square. ML का वैल्यू पता नहीं, वही ढूंढना है. LK का वैल्यू 6√3, तो 6√3 the whole square, right? Now 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 into 12 144 is equal to ML square plus. Now students remember 6√3 का स्क्वायर मतलब 6√3 into 6√3, 6√3 into 6√3. So 6 into 6 is 36, and √3 into √3 is 3. So 36 into 3. समझा कैसे? 6 into 6 is 36, √3 into √3 is 3, 36 into 3 is 108.
नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर ये +108 अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, ये +108 अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो -108 हो जाएगा। मतलब 108 अगर 144 के साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा। सो वी कैन से देयरफॉर ml स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108। चलो 144 में से 108 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ml स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108 इज 36। नाउ 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, so let us take square root. So therefore ml is equal to 36 का square root is 6, so 6 units and reason would be taking square roots. Clear? हमने square root लिया है। We are marking this as equation number 2 because अपने काम का चीज है, आगे use होने वाला है, right? So have you understood this part? We have got the radius of the circle. The first question is done, right? Now next we statement form में लिखेंगे therefore the radius of the circle is 6 units. So this is what we have got, the first answer. Now equation 1 or equation 2 since we'll be requiring it for reference, so we have taken it. आपको दोबारा 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, ओके? सेकंड स्लाइड में दिखता है करके लिखना नहीं है आपको, ये ऑलरेडी आपने लिखा है पहले। Now second question says find measure of angle K and angle M. तो चलो सबसे पहले एंगल K फाइंड कर लेते हैं। Now students, ये एंगल K हमें फाइंड करना है, बराबर है ना? एंगल K बिलोंग्स टू ट्राइंगल MLK, तो चलो ट्राइंगल MLK में ध्यान देते हैं। ट्राइंगल MLK में देखो, एंगल MLK 90 डिग्री पता है, क्यों पता है? फ्रॉम 1 बोल सकते हैं अभी, बिकॉज ऑलरेडी रीजन लिखा है तो फ्रॉम 1 भी बोल सकते हैं, या टेंजेंट थ्योरम दोबारा बोलना है तो बोल सकते हैं। यहां पर हमें एंगल K का वैल्यू ढूंढना है, एंगल L के अलावा बाकी दोनों एंगल्स का पता नहीं, तो एंगल K को ढूंढना है। बट हमें पता है कि ML का वैल्यू 6 है और MK का वैल्यू 12 है, तो अगर ध्यान से देखें तो 6 एंड 12 में कुछ रिलेशन बनता है। रिलेशन ये बनता है कि 6 इज हाफ ऑफ 12, 6 इज हाफ ऑफ 12, बराबर है? जैसे कि 5 इज हाफ ऑफ 10, 3 इज हाफ ऑफ 6, 10 इज हाफ ऑफ 20, वैसे 6 किसका हाफ है? 12 का हाफ है। तो ये वैल्यू है 6 और ये वैल्यू है 12, मतलब हम बोल सकते हैं कि 6 अगर 12 का आधा है, मतलब ML इज हाफ ऑफ MK, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ML इज इक्वल टू हाफ ऑफ MK। ये कहां से पता चला कि ML इज हाफ ऑफ MK? कहां से पता चला? देखो ML का वैल्यू 6 यूनिट्स कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 2। और MK का वैल्यू 12 कहां से पता चला? गिवन से। सो इसका रीजन होगा फ्रॉम 2 एंड गिवन। 6 2 से पता चला, इक्वेशन 2 से, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ML इज हाफ ऑफ MK, इसका रीजन है फ्रॉम 2 एंड गिवन। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है एंड हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान से सुनना, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, तो उस साइड के सामने वाला एंगल 30 डिग्री होगा। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वन साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, कोई भी एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक साइड अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ है, तो उस साइड के सामने वाला एंगल 30 डिग्री होगा, बराबर है? तो यहां पर MK हाइपोटेन्यूज है और ML जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ है, तो ML के सामने वाला जो एंगल है, ML के सामने वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। देखो जो मैंने बात की अभी, in a right angle triangle, if one side is half of hypotenuse, then the angle opposite to that side is 30 degree. So we can say therefore angle K is equal to 30 degree. तो ये पता कहां से चला? मतलब ये जो सामने दिख रहा है कंसेप्ट कि कोई भी साइड हाइपोटेन्यूज का अगर हाफ होगा तो उसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है? तो ये कंसेप्ट और दूसरा कोई नहीं,
but converse of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem. 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में क्या पता चलता है कि सबसे पहले एंगल 30 60 90 होना चाहिए, तब उसके सामने वाले साइड से इसका बात करते हैं हम लोग। यहां पर एंगल्स दिया नहीं है, एंगल हमने फाइंड किया कि एंगल 30 डिग्री है, इसलिए कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, राइट? समझा? चलो अब देखो, इस ट्रायंगल एमएलके में एंगल एल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, टेंजेंट थ्योरम से पता चला है। एंगल के कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो डेफिनेटली ये जो एंगल एम है वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों? रिमेनिंग एंगल से, डोंट से 30 60 90 से। 30 60 90 यूज कब करते हैं? जब एंगल 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो ये 60 डिग्री दिया नहीं है ना, तो 60 डिग्री हमने ढूंढा है। कैसे ढूंढा है? रिमेनिंग एंगल कंसेप्ट से। So therefore we can say angle M is equal to 60 degree. The reason would be remaining angle. Understood this? So हमें angle K और angle M ढूंढना था, तो हमने angle K और angle M ढूंढ लिया है. Okay? चलो. Now students, I want you all to write down this sum. Come on, write it down fast. Students, it's a request, please put your video off. It's sincere request. देखो अभी आपने इतने सारे messages दिए हैं, but I didn't see all the messages. का reason, इसका बहुत important reason है, it gets disturbed. Okay, so it's a request. Among we cannot do it by Trigo. अच्छा, sorry, and we can do it by Trigo as well. Sorry, you can do it. गणेश डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करता हूं 30 डिग्री कैसे आया. ओके, यस आई विल एक्सप्लेन हाउ डिड वी गेट 30 डिग्री. डोंट वरी. रिया, सॉरी आई डिडंट सी द मैसेजेस बिकॉज मैं इग्नोर कर रहा था. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट देन आई हैव कन्वेड टू ऑल द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, प्लीज पुट योर वीडियो ऑफ. इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट. Don't worry students, I have said about recorded lectures, it is not compulsory. Don't worry at all. I will never force you to see the recorded lectures. It is only that अगर आप देखोगे तो time मिलेगा तो it will be easy. Otherwise I am teaching it to you all, not to worry at all. Okay. Yes, Trigo का भी explain करता हूँ. Don't worry. Okay. Grisha. Yes, converse of 45 45 90 भी है हितेश. If any side is 1 upon root 2 times of hypotenuse, if any side is 1 upon root 2 times of hypotenuse, then the side, so the angle opposite to that side would be 45 degree. Okay, fine. No. If you do this sum by trigonometry, nobody is going to give it wrong. Okay. Yes, question 2 भी explain करता हूँ. Don't worry. Okay. ऋषिता, फर्स्ट पार्ट में तो डाउट नहीं आएगा. वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसमें कुछ डाउट तो नहीं है. ओके, फाइन. Grisha, I understood. Okay. Yes, it's lecture number 2.
नाउ प्लीज पे अटेंशन, अब ट्रिग्नोमेट्री से कैसे होगा, राइट? हमें कौन सा एंगल ढूंढना है? के। ध्यान से सुनना, इधर लिखा नहीं है कुछ भी, अभी मुझे ओरली एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान से सुनना। हमें कौन सा एंगल ढूंढना है? के। और के के सामने वाला साइड हमें पता है 6 और हाइपोटेनस पता है 12, तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? साइन के। साइन के इज इक्वल टू ml अपॉन mk। साइन के इज इक्वल टू ml अपॉन mk। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 अपॉन 12 आ जाएगा, एंड 6 अपॉन 12 इज 1 अपॉन 2। So sin k is 1 upon 2. But we know that sin 30 degree is 1 upon 2. We know that sin 30 degree is 1 upon 2. So sin k is 1 upon 2, sin 30 degree is 1 upon 2. So we can say therefore sin k is equal to sin 30. If sin k is equal to sin 30, then angle k is equal to 30 degree. Okay? Done? ये एक मेथड है एक्सप्लेन करने का। अब देखो यहां पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ये एंगल कैसे ढूंढा है, अभी ये सब में ये मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ml का वैल्यू कितना है 6 और mk का वैल्यू कितना है 12। इससे क्लियरली पता चलता है कि 6 इज हाफ ऑफ 12। अगर वैल्यू के बेसिस पे देखोगे तो 6 12 का हाफ है। नाउ सिंस 6 इज हाफ ऑफ 12, 6 किसका वैल्यू है? ml का, और 12 किसका वैल्यू है? mk का। तो वी कैन से ml इज हाफ ऑफ mk। ऐसा बोल सकते हैं कि ml इज हाफ ऑफ mk, क्योंकि ml का वैल्यू 6 है और mk का वैल्यू 12 है, तो ml इज हाफ ऑफ mk। सो याद रखना, व्हाट इज 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। मैं कॉन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट इज 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम? इफ द एंगल्स आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो इसका उल्टा क्या होगा? एनी साइड विच इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, एनी साइड विच इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस विल बी द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। सो ml हाइपोटेनस का हाफ है, तो ml के सामने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, by converse of 30 degree 60 degree 90 degree triangle theorem। बराबर समझा? बिकॉज हमें पता है कि अगर एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री दिया होगा तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस का हाफ है, तो उसका एग्जैक्टली उल्टा यूज किया हमने। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई साइड हाइपोटेनस का हाफ है तो उस साइड के सामने वाला एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। Got it? Understood? Yeah. Fine. Now pay attention. And here remaining angle, because एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तीसरा एंगल 90 डिग्री है। आई एम सो सॉरी, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री मिला है, तो डेफिनेटली तीसरा एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा बाय रिमेनिंग एंगल कंसेप्ट। ओके, अब किसी को फर्स्ट स्लाइड चाहिए था, एक बार देख लेना फटाफट। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? फाइन? ओके, नाउ लिसन केयरफुली टू दिस सम। अभी प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके, यहां पर ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. तो सबसे पहले we need a circle. So let us draw a circle. Okay. So we have drawn a circle. अब इस सर्कल को दो पैरेलल tangents है, तो let us draw two parallel tangents. So line L is one tangent at point A, line M is another tangent at point B. अच्छा, इस सर्कल का रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, A is the point of contact, O is the center.
याद रखना, whenever there is a center and a point of contact there should be a radius, बराबर है। और हमें ये पता है a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact। तो सबसे पहले एक रेडियस होना चाहिए, अगर रेडियस हो गया तो ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है, टेंजेंट थ्योरम, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट OA is perpendicular to line L, इक्वेशन नंबर 1। सेगमेंट OA रेडियस है, लाइन L टेंजेंट है, तो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट थ्योरम से। वैसे रेडियस OB भी तो हो सकता है, सो सेगमेंट OB परपेंडिकुलर टू लाइन M, इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज OB रेडियस है, लाइन M टेंजेंट है। इसका रीजन क्या होगा, दोनों का इक्वेशन 1, 2 दोनों का टेंजेंट थ्योरम, बराबर है, समझा ना स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, स्टॉप ऑल द अदर थिंग्स। कुछ मैसेज मत करना, कुछ मत करना, सिर्फ ध्यान देना भी, कुछ मत करना भी, ओके अभी सिर्फ ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स देखो, हमने बोला है कि OA किसको परपेंडिकुलर, लाइन L को, OB किसको परपेंडिकुलर है, लाइन M को, और हमें पता है कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। सो वी नो दैट लाइन L एंड लाइन M बोथ आर पैरेलल टेंजेंट्स, बराबर। सो वी कैन से दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इक्वेशन नंबर 3। कहां से पता चला, गिवन है। So now this is a concept which we need to understand it properly, listen carefully and pay attention. No discussion, because मैं अभी बोला आपको, प्लीज ध्यान देना, ओके राइट। स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट, जहां पर भी वीडियोस आते हैं ना वहां पर एक मिनिमाइज का ऑप्शन है, आप मिनिमाइज कर दो, ओके राइट। एंड स्टूडेंट्स इफ आई फाइंड एनीबॉडी अननेसेसरी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, देखो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे मजबूर मत करना यार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके राइट। सो नाउ पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, ओके ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। अब देखो रेडियस दोनों कहां से शुरू हो रहा है, सेंटर O से। एल्ड्रिन व्हाई यू आर पुटिंग वीडियो unnecessary? Students, if I find anybody putting your video on, I will do one thing, I will straight away throw out of the class, huh? It's a request, मैंने एक बार बोला, आपको समझ में आना चाहिए। I am not getting disturbed but others are getting disturbed, okay students, please, it's a request, right? Yeah, नहीं गलती से होना ही नहीं चाहिए, मेरा गलती से कभी वीडियो ऑन नहीं होते बेटा, ध्यान देना भी। अब देखो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट O, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए बोल रहा हूं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट O, one and only one perpendicular can be drawn to a line। मतलब लाइन के बाहर से एक पॉइंट है, लाइन के बाहर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, one and only one perpendicular we can draw, right? So now tell me students, if one and only one perpendicular can be drawn, अब देखो OA किसको परपेंडिकुलर है, लाइन L को, OB किसको परपेंडिकुलर है, लाइन M को। हाँ, अगर लाइन L और लाइन M नॉन पैरेलल लाइंस है, नॉन पैरेलल, तो दोनों परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे। लाइन L और लाइन M अगर नॉन पैरेलल लाइंस है तो OA एंड OB जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाएंगे। बट इक्वेशन नंबर 3 सेज दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो नाउ थिंक एंड टेल मी, अगर हमें परपेंडिकुलर O से ड्रॉ करना है और दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट O से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो दोनों भी परपेंडिकुलर एक ही लाइन पर आएंगे। वो दोनों भी परपेंडिकुलर अलग अलग नहीं हो सकते, भले ही उनका नाम अलग है, OA नाम अलग है, OB नाम अलग है,
बट ये दोनों भी परपेंडिकुलर्स एक ही लाइन पे आएंगे बिकॉज द टू लाइन्स आर पैरेलल। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? चाहिए तो आप ड्रॉ करके देखना, आपके सामने तो है ही है। दोनों लाइंस एक के नीचे एक लेना और ऊपर एक परपेंडिकुलर पॉइंट लेना, एक्सटर्नल पॉइंट, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करना। Both these perpendiculars will lie on the same line. Why they will lie on the same line? Because the two lines are parallel. Samjha? So this is a very important concept which we need to know. So that's why we are saying there exists A dash O dash B. इसका मतलब क्या है कि OA and OB भले ही दो नाम अलग हो, ये दोनों भी परपेंडिकुलर्स एक ही लाइन पे आएंगे। मतलब A, O and B will be collinear points. Therefore we are saying there exists A dash O dash B. समझा ये कंसेप्ट? इसका रीजन क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनना। Perpendiculars drawn to the parallel lines from the same point coincide. हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, दोनों भी परपेंडिकुलर्स कहां पर ड्रॉ किए? पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ किए और सेम पॉइंट से ड्रॉ किए परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दोनों भी परपेंडिकुलर सेम पॉइंट से ड्रॉ किए हैं और दोनों भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ किए हैं। तो इफ परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन these perpendiculars will coincide. Coincide का मतलब they will lie on the same line. Okay, that's why we say that A dash O dash B exist होता है। Now if there exists A dash O dash B, इसका मतलब we can use betweenness now. Use betweenness मतलब हम बोल सकते हैं कि AB is equal to AO plus OB. Okay, AB is equal to AO plus OB, right? इसका रीजन होगा A dash O dash B. अंडरस्टूड? चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। AB इज इक्वल टू, AO का वैल्यू पता नहीं कि पता है ना, AO रेडियस है, रेडियस 4.5, सो 4.5 प्लस 4.5, चलो ऐड करो 4.5 प्लस 4.5 कितना होता है? 9। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स वी हैव गॉट इट एज 9 सेंटीमीटर, राइट? चलो कॉपी डाउन दिस सम फास्ट। Yes, we have to draw the circle, Mayank. Okay. No problem, Aldrin. No problem. Okay, I know you are a very good student, definitely. Okay, but that was just in the moment of, it was a situational behavior. Because क्या होता है ना, normally I don't get angry at all. जो मुझसे 9th standard में पढ़ते हैं, they know I am very strict. But in the classroom I never get angry. बिकॉज बच्चे तो बच्चे होते हैं, बट देन अभी एक ऐसा होता है ना बेटा, सबको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंसर्न ऑफ माइंड। ओके, या मेनी फेक प्रोफाइल्स, वी आर वर्किंग ऑन इट। एक्चुअली जूम में वो प्रोविजन नहीं है, जूम में वो प्रोविजन ही नहीं है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, बाहर वाले अगर आते भी हैं लेक्चर में सुनने को, तो यार चुपचाप सुनो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मतलब व्हाट इज योर इंटेंशन? कितना करप्ट माइंड है यार तुम लोग का, राइट? लेट मी चेक।
अच्छा बेचारे सर, मतलब वाह यार, इतना ख्याल रखते हो तो शांत बैठो ना बेटा। कैलिस्ट देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड डेफिनेटली, बट वो अल्टरनेटिव मेथड है ना, इनडायरेक्ट मेथड है। ओके राइट। अल्टरनेटिव मेथड आई विल नॉट सजेस्ट, ये मेथड सबसे इजी है। Do not go by alternate method, and if you want alternate method, it is there in the solved example. Solved example में दिया है, देखो, we have drawn a line passing through O. We have drawn one line passing through O which is parallel to line L. Please go through the solved example, some you'll understand. इससे ये मेथड सबसे बेस्ट है, 100% गारंटी उनसे ये बेटर सम है, और अगर ये बेटर मेथड है। ओके 3 मार्क्स के लिए। ऋषिता वही लिखा है मैंने, देयर एग्जिस्ट बिटवीननेस a dash o dash b is a specific betweenness। आप सिर्फ बिटवीननेस बोलोगे तो इट वुड बी लाइक जनरलाइज होगा, देयर एग्जिस्ट बिटवीननेस, बट कौन सा बिटवीननेस? ओके finish writing all of you? Yeah, fine. Now let us see the next sum. Okay, a very simple sum. Done. ध्यान से सुनना, important है लेकिन। Now here we have taken point T as shown in the figure. ये T point figure में दिया नहीं, अपने मर्जी से लिया है। So we are writing here, take a point T on line L as shown in the figure. Okay. Now इस सब में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो। सबसे पहले रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये रेडियस है OP, OP रेडियस है, and this line is a tangent, so can we say angle OPT? देखो एंगल OPT will be equal to 90 degree, because we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the point of contact, so इसका रीजन होगा tangent theorem. So we are taking this as equation number 1, right? Perfect. Angle OPT 90 degree है, reason is tangent theorem. Done. Now ध्यान से सुनना, chord RS is parallel to line L. Chord RS is parallel to line L. This is the information which we know. This is given information. We can clearly see chord RS is parallel to line L. Given. Right? Now students, remember, when two lines are parallel, we think of corresponding angles, alternate angles, interior angles. बराबर है? तो वैसे ही ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन L कॉर्ड RS को पैरेलल है, और अगर हमने OP को बराबर है कंसिडर किया एज अ ट्रांसवर्सल, इफ OP इज अ ट्रांसवर्सल, एंड ऑलरेडी हमने एंगल OPT के बारे में बात किया है, तो देखो ध्यान से कौन से दो एंगल्स का मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एंगल OPT एंड एंगल OQR। ध्यान से सुनना, एंगल OPT एंड एंगल OQR, ये दोनों भी एंगल्स लेटर F फॉर्म करते हैं, उल्टा लेटर F। ध्यान से देखना, कौन से दो एंगल्स का बात कर रहे हैं, एंगल OPT एंड एंगल OQR, ये दोनों भी एंगल्स उल्टा लेटर F फॉर्म करते हैं। So whenever two angles form letter F या उल्टा F, whenever two angles form letter F and if the lines are parallel, we say the corresponding angles are congruent. Letter F form किया मतलब corresponding angles, and since the lines are parallel, corresponding angles are congruent बोल सकते हैं, right?
सो एंगल ओपीटी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल ओक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट? एंगल ओपीटी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओक्यूआर, रीजन वुड बी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब देखो एंगल ओपीटी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, और एंगल ओपीटी किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ओक्यूआर को. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल ओक्यूआर इज 90 डिग्री. कहां से पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बराबर. दिस इज इक्वेशन 3 बोल रहे हैं. Now students tell me, अगर एंगल OQR 90 डिग्री है, मतलब यहां पर पॉइंट Q 90 डिग्री है, अगर पॉइंट Q पर एंगल 90 डिग्री है, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में बोल सकते हैं कि सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS. ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है. Now since angle Q is 90 degree, we say segment OQ is perpendicular to chord RS from equation 3, बराबर. 90 डिग्री इसलिए परपेंडिकुलर बोला. Now let us think about 9th standard. We have learned perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, बराबर है कि नहीं? So OQ जो है वो सेंटर से परपेंडिकुलर है, कहां पर? chord RS पर. तो perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, बराबर है. So हम QS के बारे में, बिकॉज यहाँ पर ट्राइंगल बन रहे हैं, बराबर है, तो हम QS के बारे में क्या बोल सकते हैं कि QS जो है वो RS का हाफ है. QS is half of RS. Why QS is half of RS? Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. OQ परपेंडिकुलर है, तो OQ RS के दो इक्वल टुकड़े करते हैं. RQ किसको इक्वल होगा? QS को. हमें यहाँ पर देखो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है, तो हम QS के बारे में क्या बोल सकते हैं कि QS किसका हाफ है? RS का. तो QS is half of RS by this reason, बराबर. चलो RS का वैल्यू पता है हमको 12. देखो RS का वैल्यू कितना है? 12. सो सब्स्टिट्यूट करो RS का वैल्यू 12. सो हाफ इंटू 12 कितना होता है? 6. सो QS इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. समझा? तो देखो QS का वैल्यू मिल गया 6 यूनिट्स. बट हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें QS फाइंड नहीं करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है. नाउ इफ यू सी इस फिगर में, rather we can say first of all हमको रेडियस फाइंड करना है कि नहीं. सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी x यूनिट्स. रेडियस पता नहीं तो उसको x यूनिट्स अज्यूम किया. सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी x. अब यहां पर फिगर में टेल मी स्टूडेंट्स, रेडियस कौन कौन से सेगमेंट है जो रेडियस है? yes we can clearly see OS is the radius and OP is also the radius. OP रेडियस है और OS भी रेडियस है. so we can say therefore OP और OS दोनों इक्वल है and that is equal to x units regional radii of the same circle, बराबर. तो चलो देखो QS का वैल्यू कितना मिला है हमको, याद है ना? QS का वैल्यू 6 मिला है. OS का वैल्यू कितना है? x यूनिट्स, रेडियस है ना x. अब OQ के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. देखो Q के बारे में, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP. Q किसका मिड पॉइंट है? रेडियस OP का मिड पॉइंट है. तो अगर OQ के बारे में कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि OQ हाफ है. किसका हाफ है? OP का. Q हाफ है बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट OP. ये बोला है क्वेश्चन में. तो OP का वैल्यू कितना हमने अज्यूम किया? OP का वैल्यू x अज्यूम किया है, तो सब्स्टिट्यूट करो. सो देयरफॉर OQ इज इक्वल टू हाफ इंटू x. हाफ इंटू x मतलब x अपॉन 2 लिख सकते हैं, यूनिट्स, राइट. तो चलो नाउ हम ट्राइंगल OQS के बारे में सोचेंगे बिकॉज OQ का वैल्यू पता हो गया x अपॉन 2, QS का वैल्यू 6 एंड OS का वैल्यू x. सो इन ट्राइंगल OQS हमें पता है एंगल Q कितना डिग्री है? 90 डिग्री है. कहां से पता चला? पता ना? फ्रॉम इक्वेशन 3. एंगल Q 90 डिग्री, सेगमेंट OQ परपेंडिकुलर बोला था, तो एंगल OQS इज 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3. नाउ सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है OS. सो OS स्क्वायर रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो देयरफॉर OS का वैल्यू 6 नहीं ना, आई एम सो सॉरी. OS का वैल्यू कितना है? यस, OS का वैल्यू x. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का वैल्यू
x अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस QS का वैल्यू 6 स्क्वायर। सॉल्व करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस 4, ये 4 नहीं चाहिए हमको, तो डिनोमिनेटर का 4 अगर निकालना है तो सारे टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करो। देयर आर 3 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तीनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करो। सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई किया बराबर। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये 3 मल्टीप्लाई, उधर गया तो डिवाइड होगा, ये 3 मल्टीप्लाइड है, उधर गया तो डिवाइड होगा। सो वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 3। Now 144 upon 3, अगर 144 को 3 से डिवाइड करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 बराबर। ना अभी 48 के फैक्टर्स निकालने, बिकॉज हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट लेना है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48, स्क्वायर रूट ऑफ 48, बिकॉज स्क्वायर रूट लेना है ना, हमें x का वैल्यू चाहिए। ना 48 के फैक्टर्स लोगे तो एक उसमें से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 48 के फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो व्हेन कैन वी से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 3, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, सो x इज इक्वल टू 4 रूट 3। ना x मतलब क्या, x मतलब रेडियस, इफ यू रिमेंबर x मतलब रेडियस, सो कैन वी से OS इज इक्वल टू 4 रूट 3 यूनिट्स, राइट। सो OS का वैल्यू मिला, OP का भी वैल्यू मिला, बिकॉज OP इज ऑल्सो द रेडियस, सो OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 4 रूट 3 यूनिट्स। Finally we can say therefore the radius of the circle is 4 root 3 units. Did you understand this? Sure, हमने रेडियस फाइंड किया। Yes, this sum will come for 4 marks. Okay, right? No, OS is not construction, Shubham, because it was क्वेश्चन में पूछा था ना, राइट? ड्रॉ मतलब फाइंड द रेडियस, तो रेडियस फाइंड करने का था, राइट? यस, देख लो एक बार। देखो ये पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके? Yes, this was the last sum for today, okay? And the lecture is already uploaded on the channel. Please watch it. जितनी बार explanation चाहिए आप सुन सकते हैं। No, Labdi, 1.73 is approximate value of 1 root 3, okay? Yes, Shubham. Normally, I have to sit in the fields to take the lecture. Okay? यहाँ पर नेटवर्क अच्छा इसलिए। यस रिया, आपका थोड़ा क्वेश्चन बड़ा डाला आपने, सब पैरालिसिस के डाफर। एक मिनट।
Yes, yes. Okay, Ria, perfect. यश रिक्वेस्ट तो किया है बट देन नहीं समझते हैं, उसका ऑप्शन ढूंढना ही है हमको. इफ एनीबडी नोज इट प्लीज टेल अस. देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी. तो रेडियस को हमने एक्स अज्यूम किया है, तो ओ क्यू का वैल्यू होगा एक्स अपॉन टू. अगर रेडियस एक्स है तो ओ क्यू रेडियस का हाफ है, तो एक्स का हाफ कितना हो गया, एक्स अपॉन टू. ओ एस रेडियस है तो ओ एस का वैल्यू हो जाएगा एक्स, एंड क्यू एस इज हाफ ऑफ आर एस. अब क्यू एस आर एस का हाफ क्यों है, बिकॉज नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री हमने प्रूव किया. कैसे प्रूव किया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम से. बिकॉज एंगल ओ क्यू आर एंड एंगल ओपीटी आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसमें से एंगल ओपीटी 90 डिग्री है टेंजेंट थ्योरम से. सो एंगल ओपीटी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ओक्यूआर को. सो एंगल ओक्यूआर कितना डिग्री मिला, 90 डिग्री. अच्छा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री मतलब मिला, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो क्यूएस किसका हाफ है, आरएस का. आरएस का वैल्यू कितना दिया है, 12. तो क्यूएस हो गया 6. देखो ओएस का वैल्यू है एक्स, ओक्यू का वैल्यू है एक्स अपॉन टू, एंड क्यूएस का वैल्यू है 6. तो वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देयर. ओके, yeah, fine. Yes, lecture 2 will be the same sums. Okay, will be the same sums. Do not worry. वेट, अभी सेकेंड स्लाइड वालों रुक जाओ जरा, थर्ड स्लाइड पर आ गए हैं. हाँ वृक्ष, हाँ डेफिनेटली यार, पाइथागोरस से हम पहले भी बोला है ना, उसका डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स हो जाएगा, स्पेसिफिकली बोला था, उसमें जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो सब हो जाएंगे. यस, मैंने अपलोड किया है लेक्चर 2 बेटा, देख लेना. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट इट. ओके, कोई भी मेरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाता है. Arpita, OS is equal to OP because OS and OP are radii of the same circle. OP radius है, OS radius है. Okay. Thank you Mauli, thank you very much. अच्छा, जिनको सेकंड स्लाइड चाहिए था देख लो फटाफट. गुड नाइट ऑल ऑफ यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू ऑल, लव यू ऑल, बाय. अगर आपका हो गया होगा यू कैन लीव द लेक्चर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बस यही काम करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड. Yes, I don't know about sponsorship and all. Okay, I am just doing it for the sake of students, that's it. Okay, अब फर्स्ट स्लाइड दिखा तो डोंट वरी, सेकंड स्लाइड का हो गया सबका, श्योर. यस, वेट वेट स्नेहा, वेट बताता हूँ, फर्स्ट स्लाइड भी बताता हूँ. ये रहा फर्स्ट स्लाइड. ओके, who's Tahir Shah and he has sponsored me. Oh wow, I really don't know.
Thank you, Asta. Yes, this was the last sum, Sonam. Okay. If you have done with it, you can leave. I'm just waiting it for the students जिनका कुछ pending है, वो कुछ पूछते हैं ये सब चीज. Okay. If everything is done, can we leave all of y'all? Yeah. Oh, the Vaibhav, there are 3 teams specially. There are 3 of my favorite players. That's why. First is, of course, we are Mumbai, the Mumbai Indians. I am a damn Dhoni lover and Virat lover. Okay, मतलब विराट कोहली का जो एटीट्यूड है, I love it. Okay, done. Okay, so तीनों teams चाहिए हैं मेरे. Bye bye, all of you all. Take care. Love you all. Bye. Okay.